Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about linear equation in two variables. This chapter is from your ninth mathematics NCRT. So students, in the previous lecture you already learn about what is the standard form और इस linear equation को हम कैसे लिखते हैं, कौन से फॉर्म में लिखते हैं. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ओके, और a के वैल्यू, b के वैल्यू, c की वैल्यू ऑलरेडी हमने लिखा था. ओके, एक्सरसाइज में भी. ओके, इसे प्रैक्टिस भी किया था. तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. You have seen that every linear equation in one variable has a unique solution. So what can you say about the solution of a linear equation involving two variables? अभी अगर two variables है तो उसका solution क्या हो सकता है? As there are two variables in the equation, a solution means a pair of values, one of x and one for y, which satisfy the given equation. Let us consider the equation 2x plus 3y is equal to 12. Here x is equal to 3 and y is equal to 2 is a solution because when you substitute x is equal to 3 and y is equal to, हमें यहाँ पर just substitute करना है. तो 2 multiply with 3, 3 multiply with 2, 3 2 is 6 and 3 2 is 6, 6 plus 12 हो जाता है. The solution is written as an order pair 3, 2. First writing the value for x and then value for y. Similarly 0, 4 is also solution for a इक्वेशन अबाउ. ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए 0, 2 कैसे यहाँ पर हो जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 4, इसका आंसर क्या होगा. 0 प्लस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 12 ही आ जाएगा. तो ये भी हो सकता है. 0, 4 भी यहाँ पर आ सकता है, मतलब x की वैल्यू आप 0 एंड y की वैल्यू 4 भी पुट कर सकते हो. ये भी इसका सोल्यूशन हो जाता है. देन 3 एंड 2 भी ये भी सोल्यूशन है. ओके, so on the other hand 1, 4 is not a solution of 2x plus 3y is equal to 12. okay, ये solution नहीं हो सकता, उसका आंसर 14 समथिंग आता है. So because on putting x is equal to 1, y is equal to 4, we get 2x plus 3y is equal to 14, which is not 12. So note that 0, 4 is a solution but not 4, 0. ओके, अगर आप 4, 0 लिखते हैं तो 2 4 2 8, 8 आ जाएगा आंसर. तो ये तो नहीं है. सो यू हैव सीन एट लीस्ट टू सोल्यूशन फॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दैट इज 3, 2 एंड 0, 4. सो कैन यू फाइंड एनी अदर सोल्यूशन. क्या आप अनदर कोई सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हो. डू यू एग्री दैट 6, 0 इज अनदर सोल्यूशन. हो सकता है क्या. 6 2 12, 12 प्लस 0, येस ये भी हो सकता है. सो यहाँ पर हमने वेरीफाई भी किया. सो इन फैक्ट यू कैन गेट मेनी सोल्यूशंस इन द फॉलोइंग वे. सो पिक अ वैल्यू of your choice for x, say x is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 12, then the equation reduce to 4 plus 3y is equal to 12. So you can easily find out the value of y. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. y is equal to 8/3 हम लिख सकते हैं. मतलब पहले 4 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 आ जाएगा. तो 3y is equal to 8, y is equal to क्या होगा 8/3. तो 8/3 यहाँ पर आ गया, मतलब 2, 8/3 is also solution for 2x plus 3y is equal to 12. सिमिलरली चूजिंग x इज इक्वल टू -5, अगर हम यहाँ पर -5 यूज करते हैं सो यू फाइंड द इक्वेशन बिकम्स -10 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सही ना. येस. सो दिस गिव्स y इज इक्वल टू 22/3, मतलब -5, 22/3 इज ऑल्सो अनदर सोल्यूशन. ओके, so of 2x plus 3y is equal to 12. So there is no end to different solutions of a linear equation in two variables. This is a linear equation in two variables has infinitely many solution. How many solutions है यहाँ पर. infinitely many solutions. एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए. फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. हमें क्या करना है, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. सो बाय इंस्पेक्शन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू इज एन सॉल्यूशन बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है. देखिए यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 यहाँ पर 6 ही आता है. आंसर सेम हो गया. So now let us choose x is equal to 0. So with this value x, the given equation becomes reduced to y is equal to 6. तो 6 divided by 2 3 आता है. So y is equal to हमें मिल गया 3. So x and 0 and 3 this again second solution यहाँ पर बनता है. सिमिलरली आप यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू ले लीजिए. सो द गिवन इक्वेशन रिड्यूस टू x इज इक्वल टू 6 आ गया. तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया यहाँ पर सोल्यूशन. सो फाइनली लेट अस टेक y इज इक्वल टू 1. आप कोई भी वैल्यू लीजिए रिस्पेक्ट टू दैट सेकंड वैल्यू, आप इक्वेशन से सॉल्व करके निकालिए, आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा. सो द गिवन इक्वेशन नाउ रिड्यूस टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 6. So whose solution is given by x is equal to 4. So therefore 4, 1 is also a solution of the given
equation. So 4 of the infinitely many solutions of the given equations are 2, 2, 0, 3, 6, 0 and 4, 1. So remark देखिए यहाँ पर, note that an easy way of getting a solution is to take x is equal to 0 and get the corresponding value of y. Similarly, we put y is equal to 0, obtain the corresponding value of x. Okay, उस तरीके से आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है आपको, आप y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, एंड सेकेंड वे में y इज इक्वल टू 1 पुट करिए एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो. तो स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ है वो भी कैसे निकाला जाता है वो भी आपको इन द प्रीवियस अपने प्रीवियस चैप्टर में जो लर्न किया था, कार्टेशियन प्लेन में जो आप ग्राफ बनाते हो तो आपको उसे हायर स्टैंडर्ड में लर्न भी करना है. ओके, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ कैसे बनता है. एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. देखिए 4x plus 3y is equal to 12. So taking x is equal to 0, we get 3y is equal to 12. That is y is equal to 4. So 0, 4 is the solution of the given equation. Similarly, by taking y is equal to 0, so we get x is equal to 3. Thus 3, 0 is also solution. Okay. आपको 2 solution ही find out करने हैं. Then 2x plus 5y is equal to 0. So taking x is equal to 0, we get 5y is equal to 0. That is y is equal to 0. So 0, 0 ये first solution आपका बन जाएगा. Now if I take y is equal to 0, you can again get 0, 0 as a solution, which is the same as the earlier one. To get another solution, put x is equal to 1. So यहाँ पर क्या हो जाता है, y की वैल्यू -2/5 यहाँ पर आती है. तो 1, -2/5 ये अनदर सोल्यूशन बन जाता है. ओके, एंड फॉर द थर्ड वन 3y plus 4 is equal to 0. So writing in the equation 3y plus 4 is equal to 0. So 0x plus 3y plus 4 is equal to 0. You will find that y is equal to -4/3 for any value of x. So thus 2 solutions can be written as 0, -4/3 and 1, -4/3. Okay, देखिए 0x प्लस 3y प्लस 4. ओके, x की वैल्यू आपने 1 पुट करी, कोई प्रॉब्लम नहीं. x की आपने वैल्यू 2 पुट करी, वही आंसर आने वाला है. 3 पुट की, वही आंसर आने वाला है. क्यों? बिकॉज मल्टीप्लाई विथ 0 है. ओके, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालिए, 1 डालिए, कोई भी डालिए, y की वैल्यू -4/3 ही आने वाली है. ओके, तो इस टाइप के जो ग्राफ बनता है वो कौन सा बनता है, ये पैरेलल ग्राफ बनता है किसी एक्सिस को. ये सभी बातें आपको इंटरेस्टिंग बातें हायर स्टैंडर्ड में लर्न करने के लिए है. ओके, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स में. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड होता है. तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज के इस वीडियो में हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ द 2 वेरिएबल्स इक्वेशन. ओके, इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन मिलता है हमें, तो कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया. आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.